Hi students, today we will start. There are three topics that we will include in this lecture. First is ED current, second one is your self-induction, and third one is mutual induction. Now you try to understand one diagram we have made here. The diagram is what? There is a magnetic field produced by the two poles of a magnet. Normally we take horseshoe magnet. This is North Pole, this is South Pole. A magnetic field is established between the space of these two poles, and between the same space, one metal sheet is being hanged. It is hanged with a string. Now, the metal sheet is allowed to oscillate. After oscillation of 1 or 2 minutes, if you touch this sheet, after oscillation, if you touch this sheet, the sheet gets heated. Now the question comes, from where this heat comes? So naturally, you know Joule's law of heating effect of current. That the heat is equal to I square RT, because there is no source, heating source present here. But still, even though it is being heated, it means some current is flowing in this sheet. And normally you know that the current flows through the wire, it has particular direction. But here current is flowing in a sheet. And the direction of current is like this one. This current goes, no. It is in this direction. Spiral type of direction of this current. The direction of current is spiral one. Like this. Okay. This current is known as ED current. Okay. This current is known as ED current. Now, how does this ED current was produced actually? When this sheet was oscillating, naturally, the magnetic flux linked with this sheet is changed. And due to change of this magnetic flux, one induced EMF must be set up there, and this causes an induced current. An induced current through this sheet is known as ED current. So the definition first you note down, what is ED current? ED current. Okay, you write down. The current produced in a metal sheet due to change of magnetic flux. The definition same I will write also. The current, induced current, the induced current in a metal sheet due to change of magnetic flux. Magnetic flux linked with the sheet. Linked with the sheet. Okay. This is what ED current. And the direction of ED current is mentioned here. Normally, this ED current is actually its value is huge, because metal sheet has very thick resistance. Since metal sheet is very thick, so its resistance is very low, and the magnitude of current is very high. So large value of current is produced there. So mind you. So sometimes it causes the wastage of energy. If somebody will ask you how will you minimize the ED current? So since its direction is made a spiral, so what you do, if you cut this sheet, make one slot, cut the sheet and remove it. It will be empty space like this one. So this one is sheet here, and if you are cutting this sheet like this, this sheet is here, and this portion is being removed. So that means we are making slot.
व्हाट यू विल डू, आपने क्या करना ना, इधर में कट करके हटा दो तो जगह ही नहीं रहेगी। आप हिंदी में पढ़े हो ना, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। तो अगर मान लो ये करंट ऐसे ऐसे फ्लो होता है, बीच से ही इसका मेटल शीट को हम कट करके रिमूव कर दें तो हम ईडी करंट को, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगा तो फ्लो कहाँ से होएगा। ओके, तो यू राइट ऑन, मतलब फ्लो तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। तो यू राइट ऑन, द ईडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड by making slots. The ED current can be minimized by making slots. Slots means remove some portion. The ED current can be minimized. Right on. The two ways to minimize that. The ED current can be minimized. Can be minimized by making slots. Okay. So the second point is, if you laminate the sheet, the laminated sheet causes high resistance, causes high resistance, high resistance. So the ED current may be reduced. The ED current may be reduced. Current may be reduced. That you have to write. May be reduced. Okay, these are 2 points you have to remember. Sometimes you are being asked that how will you minimize the ED current by making different slots in the sheet. And second one, if you laminate the sheet, lamination perhaps you know that the important documents are being laminated. If you laminate the sheet, it will produce high resistance, and in this way also the ED current can be minimized. So this is the second method. Now you come here. These are the place where ED current is causing problem. The ED current is the source of wastage of energy. That places you will take care that it should be minimized. But I will tell you that the ED current has sometimes great benefit also. Now we are talking about the positive parts of ED current. So what ED current, how the ED current is applied in our daily life, and what is the uses, what is the applications, these all things we will see here. First you write on the application of ED currents. Since this current is a huge current, application of ED current, I am writing you some points that you have to remember. First point is what? Electric furnace. Electric furnace. Okay. So ED current is its magnitude is very high, produces huge amount of heat, creates a high temperature, and so metals are also melted. Extraction of some metal is being done by using electric furnace. So ED current is used in electric furnace. First one is what? Electromagnetic damping. Electromagnetic damping. Just you try to understand. Same example earlier we have taken. Suppose you have a magnet. It creates one magnetic field. One pendulum is there. The pendulum is being oscillated. You will find that the pendulum comes into rest quickly. Pendulum comes into rest quickly. What is the reason? अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो पेंडुलम को रेस्ट में आने में बहुत टाइम लगता है। डैम्पिंग का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग मतलब क्या होता है? डैम्पिंग मीन्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। अपर तो डैम्पिंग का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड।
तो आप किसी पेंडुलम को ऐसे किसी मैग्नेट के दो पोल के बीच में आप ऑसिलेट करो, तो देखोगे बहुत जल्दी ये जो पेंडुलम है वो रुक जाता है, यानी बहुत जल्दी उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, अगर ये नहीं रहता तो ये आराम से आते 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 बहुत टाइम लगता, कम्स इनटू रेस्ट, धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड कम होते। बट यहाँ क्या होता है ना, रफ्तार हो जाता है। क्यों होता है ये ध्यान से देखें कि जब ये आपको ऑसिलेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड विद दिस बॉब will change and this will produce an ED current. ठीक है, तो ED current is an induced current that you know, induced current in a metal. तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप लेंज लॉ को याद करो, तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि वह जिस कारण से वो बना है उस कारण को अपोज करता है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कॉज। तो क्या हुआ, ये ऑसिलेशन के कारण से बना है तो ये ऑसिलेशन को ही अपोज करेगा, तो रिजल्ट क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट विल अपोज इट्स कॉज। तो रिजल्ट क्या होगा, ये ऑसिलेशन जल्दी खत्म हो जाता है, द ऑसिलेशन क्विकली डाइज आउट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। ओके, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स यानी कोई ट्रेन है चल रही है, उसमें ब्रेक लगाना है तो ईडी करंट का यूज होता है। उसके जो ड्रम है ब्रेक का, उसमें आपको एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराया जाता है। ड्रम तो पहले से ही है, तो जो ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और ड्रम जो है वो घूमता रहता है, वो उसमें हरकत होती है, तो दिस कॉजेस क्या बोलते हैं ना, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, ईडी करंट होगा, जिस कारण से वो ईडी करंट बना उस कारण को अपोज करेगा। सो इन दिस वे this principle may be used in electric brake, not maybe, it is being used। maybe तो होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये होता है। और एक और आपको यूज है इसका, जैसे आप इलेक्ट्रिक मीटर, पुराना वाला बोलना, एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर, दैट यू राइट डाउन इन एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर, डिजिटल नहीं, डिजिटल में नहीं यूज होता है ईडी करंट का, एनालॉग जो पुराना वाला आपको काला वाला आप देखे होंगे, उसमें एक डिस्क टाइप का रहता है, द डिस्क इज मूविंग एंड इन दिस वे ईडी करंट, okay, in this way you can, in analog electric meter, this ED current can be used. Okay, now you come here. So this is the part here you have to understand. These are the points that you please note down and you make one note for your exam point of view. Now you come here, the next topic we will talk here is about self-induction. See, self-induction. Although in online live classes I told you something, but the problem is that the number of students that is connected in online classes are very low, and that's why I have to, because I don't find any another method to reach to you. So this is the method that will record this video, upload on YouTube, and I will give you link. Self-induction. The first you see self-induction. Self-induction. Now consider there is a coil. Okay, it is connected with a cell, and this is your key. Okay, the coil के specification ये है, N is number of turns of coil, number of turns of coil. ठीक है, पहला एक होता है छोटा n, small n. तो normally this parameter is very much important one, that you know why it is important. This small n is equal to number of turns of the coil per unit length. Okay, so you have taken a coil whose number of turns is n and a small n is number of turns per unit length. So L is length of this coil. ये तो एक छोटी सी कहानी। अब क्या है, ध्यान से सुनो। जब आप
अभी क्या है, स्विच ऑफ है। तो इसको समझ ले तो ज़्यादा बढ़िया है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। स्विच ऑफ, करंट बताएं, करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबकी हम बारी बारी बताते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें, हम ऑन करते करंट का वैल्यू ग्रो हुआ, पहले जीरो था क्योंकि ऑफ था। नाउ द करंट ग्रोज फ्रॉम जीरो टू आई, करेक्ट। तो नेचुरली करंट जीरो है, तो इस कॉइल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में किए हुए हैं पहले से। तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट स्मॉल n into I. This is much important formula that we have done also. B is equal to mu naught Ni. This is the magnetic field inside a coil. This N is smaller. This N is number of turns per unit length that you have to take care. अदरवाइज अगर आप इसको नंबर ऑफ टर्न्स मान के चलो तो आपके सारे खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको इस पर ध्यान रखना। अब तो अब आप देखो कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो तो करंट डिपेंडेंट है। तो करंट पहले नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं ही होगा। जो ही करंट इससे फ्लो हुआ ऑन करने के बाद, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रो हुआ जीरो से बी। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी पहले जीरो था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जिससे कैपिटल एन, इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जीरो है, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो फॉर दिस केस। तो इसका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो अगर अब ध्यान देखें कि अगर B जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। तो यहां पे आप देखो कि जब ये ऑफ था तो ऐसे कर देते, ये ऑफ का है डाटा, ये आपका ऑन का है। तो फ्लक्स ऑल्सो ग्रोज फ्रॉम जीरो टू फाइव, बस यही ध्यान रखना है आप। तो जो ही फ्लक्स ग्रो हुआ तो फ्लक्स में चेंज आया। तो चेंज ज्यों ही हुआ तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करें, बैटरी करंट अलग है और इंड्यूस्ड करंट अलग है। इसका मतलब है एक साथ दो करंट आपको इसमें दिखेगा, दिखेगा नहीं, करंट को हम देखते नहीं, करंट का इफेक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एज सुन एज यू विल पुट योर स्विच ऑन, you will find this current from DC source will go. There is no problem at all. But in the beginning, at the time of switch on, what happened? The current grows from 0 to I, magnetic field grows from 0 to B, magnetic flux grows from 0 to 5. The magnetic flux grows. It means there will be an induced EMF apart from this EMF. मतलब इसके अलावे एक और ईएमएफ होगा, इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये नोट करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ स्विच ऑन, द मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रोज एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट, क्योंकि ग्रोथ ऑफ ये करंट को, बैटरी करंट को हम इंड्यूसिंग करंट बोलते हैं, और फ्लक्स चेंज के कारण जो करंट हो रहा है उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इसलिए नाम ही अलग अलग है, इंड्यूसिंग करंट और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूसिंग करंट कम्स फ्रॉम बैटरी, इंड्यूस्ड करंट कम्स ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। So at the time of switch on, one induced current is produced. It will oppose the growth of current, growth of inducing current. ठीक है, तो इस लाइन को आप नोट करें, ये दो फॉर्मूला को आप लिख के रख लें। आगे चलते हैं, इसको हम लिखें एट द टाइम ऑफ स्विच ऑन,
at the time of switch on, सिर्फ उसी टाइम switch on, the an induced current is produced due to increase of मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंक्रीज होता है ऑन करते वक्त, पहले जीरो था अब कुछ आ गया। यहां पे लिखना है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it will oppose the growth of current. It will oppose the growth of current. Okay, so it will oppose the growth of current. अगला आप देखें, जो दूसरा स्टेप हम करेंगे वो ये, अब हम ऑफ करें तो I जो है वो हो जाएगा 0। मैग्नेटिक फील्ड भी I डिपेंडेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा। फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है तो वो भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स घट के 0 हो गया, कब? ऑफ करते वक्त। तो ध्यान दें कि ऑफ करते हुए जो ही ऑफ किए I 0 हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गया, फ्लक्स भी 0, तो फ्लक्स घट के 0 हुआ, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, ये ध्यान में रखना। और ये जो ग्रोथ ऑफ इंड्यूसिंग करंट बोलना, तो ये जो करंट है किस करंट को अपोज करेगा? ये करंट को इंड्यूसिंग करंट लिखना, ठीक है, करंट के पहले इंड्यूसिंग। हाँ, तो बात कर रहे थे जब ऑफ किए तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स घट के 0 हो गया, फिर से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ इस कॉइल से, और ये अब की बार जो करंट है वो किसको अपोज करेगा? तो करंट के घटने को अपोज करेगा, ठीक है। पहला केस में था ऑन के वक्त इंड्यूस्ड करंट जो है उसका डायरेक्शन, तो एट द टाइम ऑफ स्विच ऑफ the direction of induced current फटाफट करते जाओ, the direction of induced current is such that it will oppose, किसको अपोज करेगा? the decay of inducing current, ठीक है, इंड्यूसिंग करंट। तो मतलब ये हुआ कि जब हम ऑन करें तो इंड्यूस्ड करंट बना, ऑफ करें तो भी इंड्यूस्ड करंट बना, लेकिन अगर कंटिन्यूअस प्रेस करके रखे तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये है डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स का करंट जो है वह मतलब क्या बोलते हैं, स्टीडी होता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब करंट के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। इफ कंटिन्यूअसली इट इज बीइंग प्रेस्ड फॉर हाफ एन आवर तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। इंड्यूस्ड करंट इस केस में तभी आएगा जब आप या तो ऑन करो या फिर ऑफ करो, क्योंकि उसी समय करंट का वेरिएशन हो रहा है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। अब चलो, हाउ यू डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। तो अब एक नोट करें, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट ऑन। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिख सकते हो, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। तो डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, इसको हम डिफाइन करें। ये कहानी सिर्फ इसी को बताने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ
production of induced current, production of induced current in a coil due to change of its इसी का its magnetic flux is called self induction, is called self induction. Okay, so this you have perhaps you have understood this one. Self induction किसको बोलते हैं? Production of induced current in a coil due to change of magnetic flux of it. इसी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, भले ही इसमें दो करंट फ्लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ही फ्लक्स चेंज होगा एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा एक्स्ट्रा। और वो जो ईएमएफ है उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, हमेशा ये अपोज करने वाला होता है। ठीक, ओके, नाउ यू कम। अब कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हम देखें फटाफट। अब आप देखें, पहला लाइन आप लिखेंगे कि इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है। बेसिकली तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? तीनों फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे, क्या क्या बी लिखाए थे, म्यू नॉट एन आई, फाई लिखाए थे एन इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा इज 1 ईयर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला हम बोले कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है जो करंट उससे फ्लो हो रहा है उस पर। ठीक है, तो अब आप देखें, इसी बात को हम लिखेंगे। क्या हम बोल सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? बहुत आसान है, यस बोला जा सकता है। तो अब आप लिखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स of a coil is directly proportional to the inducing current. इंड्यूस्ड करंट नहीं, इंड्यूसिंग करंट। इंड्यूस्ड करंट तो फ्लक्स चेंज होने के बाद, इंड्यूसिंग करंट यानी बैटरी से जो करंट आ रहा है उसका। इसको मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, नो प्रॉब्लम। तो फाई इज इक्वल टू सम ऑफ कांस्टेंट एल इंटू आई। ठीक है, एल यहाँ पे कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी कॉइल का। बाकी हम इस कॉइल को इंडक्टर बोलते हैं। तो ये जो एल है इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर सिंपली सेल्फ इंडक्शन ही लिख देते हैं। ठीक है, तो एल का, एक मिनट, यस चॉक, तो एल का नाम आप लिख डालें। एल इज व्हाट? एल इज coefficient of self induction। ठीक है, अब ध्यान दें, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, अब सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिफाइन करेंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसको हम कैसे लिखें एग्जाम में? तो बहुत आसान है लिखना। अब आप बताएं यहाँ पे कि L बराबर क्या हो जाएगा। मान लो इसी एक्सप्रेशन में हम आपको बता दें कि I जो है वह 1 एम्पियर, ये इक्वेशन 1। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? L, क्योंकि I तो 1 है अगर मान लेते। तो इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू फाई व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज। बस यही डेफिनेशन हो गया, यही आसान सा डेफिनेशन है। क्या
तो you write down the coefficient of self induction या self inductance is defined as magnetic flux of a coil या of an inductor भी बोलते हैं, इसको इंडक्टर ही बोलेंगे, when यूनिट करंट passes through it या 1 ampere करंट, देखो 1 ampere करंट passes through it, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, passes through it। तो यूनिट करंट जब भी पास कराओगे तो ये आपको होगा। अब चलो, ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को देख के हमें आप बताएं इसका यूनिट क्या होगा। तो L बराबर होता है phi डिवाइडेड बाय I। L बराबर क्या होता है? phi डिवाइडेड बाय I। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। तो इसको देख के यूनिट बोल सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और I करंट, वेबर पर एम्पियर इज द यूनिट। इसको हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है H, शॉर्ट में बोलते हैं, नहीं शॉर्ट में बोलते हैं कैपिटल H, हेनरी, इसको हेनरी लिखते हैं, हेनरी। तो हेनरी जो है तो साइंटिस्ट के नाम से इनका यूनिट पड़ा है सेल्फ इंडक्शन का। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट होता है हेनरी या वेबर पर एम्पियर, आप कुछ भी बोल सकते हो। एक स्टेप और आगे बढ़ें, इसको भी ध्यान से देखें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। पहला इक्वेशन आप ध्यान से नोट करके रखना। अब चलो कि सपोज करो फेराडे लॉ से, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, induced EMF E is equal to minus of rate of change of magnetic flux। ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा ये हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई के जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और फाई के जगह हम लिखेंगे एल आई। तो एल चूंकि कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ओके, एल डी आई बाई डी टी। अब यहां पे क्या हमारा एक्सप्रेशन आया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट हुआ। अगर इसका वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी एल जो है, अब एल का दूसरा डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हो। यू राइट डाउन द सेकेंड डेफिनेशन, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और सिंपली शॉर्ट में सेल्फ इंडक्शन एल, is equal to induced EMF when rate of change of current through the coil is 1 ampere per second। यही बात लिखो, लिख डालो, दूसरा डेफिनेशन है ये, पहला डेफिनेशन आप नोट करो, दूसरा में दोनों में से कोई भी आप हमेशा ध्यान रखना। राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, the coefficient of self-induction is defined as induced EMF when rate of change of current
इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड का हम करंट में चेंज लाएं तो जो आपका जो कॉइल है उससे जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसी को हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब चलो इतनी बातें खत्म। सेल्फ इंडक्शन आप समझ गए तो म्यूचुअल इंडक्शन भी आप समझ जाओगे, सिमिलर है। इसको हम शॉर्टकट में खत्म करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को भी। यू ट्राई टू सी केयरफुली। एक क्वेश्चन है कि अभी पहला जो इक्वेशन था वो था फाई बराबर होता है एल आई, तो एल बराबर होगा फाई अपॉन आई। ठीक, तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि क्या सेल्फ इंडक्शन एल करंट पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला तो आपको बता रहा है डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे यस करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट आप गलत हो जाओगे। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन जो होता है किसी भी कॉइल का वो करंट पे डिपेंड नहीं करता। कैसे, वो भी आप देखें। क्या हम इसको लिख सकते हैं, फाई के जगह हम लिखेंगे एन इंटू बी इंटू ए बाई आई, लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ वन टर्न इंटू डिवाइडेड बाई आई। और b को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो b बराबर क्या होगा ये देख लो, n इंटू बी की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई इंटू ए। ये जो है ये b की जगह है, ये डिवाइडेड बाई आई। तो आई तो पहले ही कैंसिल हो गया, कैंसिल। ओके, मान लो ये जो हो जाएगा आपको L बराबर, L का ही फॉर्मूला निकालें, L इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रीअरेंज करें, दोनों n आ गया तो एक n के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो ध्यान दें, n इंटू म्यू नॉट इंटू n बाई L, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू a। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, अगर आप स्मॉल एन के टर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको रिप्लेस करो, क्योंकि आपको पता है एन इज इक्वल टू एन बाई एल। तो ये बड़ा एन को आप क्या लिख सकते हो, बड़ा एन बराबर होगा एन इंटू एल। तो इसको आप रिप्लेस करो तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये भी फॉर्मूला सही है, और इसको हम स्मॉल एन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू एन एल, स्मॉल एन इंटू एल, इसका स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर एल स्क्वायर, एक कैंसल हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। ओके, दिस इज द वन पार्ट। एक और चीज हम बताना चाहते हैं, वो ध्यान से देखें। अगर मान लो कि कोई कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है, अगर इस कॉइल के अंदर में एयर है तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बराबर होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर हम एक आयरन का रड डाल दें तो फिर एल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दिस इज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी, बाकी सब सेम रहेगा एन स्क्वायर। So these two facts you must remember. If you insert an iron core in a coil, the coefficient of self-induction will increase, बढ़ जाएगा। Okay? So this is the fact about self-induction. Next class में हम आपको mutual induction के बारे में बताएंगे। Thank you very much.